Good man. Okay, we are live. Live. Okay. Okay, welcome everyone. Hi, Vani holds the record of maximum views of the presentation videos. Okay, her video had close to 3,000 views. Oh, that's great. That is, she has done something which I will talk to her in person and understand. Okay. How to manipulate. How to manage that? Yeah. Okay, we had many people, many share the secret. Yeah, many stalwarts are presenting, but Vani still holds. She's far ahead than anybody else. That's Okay, great. close to 3,000 views is no joke. Okay. Okay. Anyway, with that Thank note, you for giving me such an opportunity to. we will start giving opportunities. One, making best use of it is another. Okay, so you have done that. That is great. Right. Okay, so welcome everyone to this show. So this is our 37th edition, and today we have a special guest. I think maybe the first time we have a person from Jharkhand exhibiting his works, right, Sujit? Yeah. I think so we are very excited and thrilled because like this is a good opportunity for us to know the cultural landscape of different parts, right? Okay, so he's settled in Kolkata. He did his studies in Ravindra Bharati University. He did his BFA and MFA in sculpting from there. 2015 he did his bachelor's, and 17 he did his master's. And he has a journey which I don't want to tell that ahead. So he will talk about that and how that humble beginning of Arjun gave him a different kind of artistic insight, and how that continues to trace out in his works. He will talk about that. Another landmark I would like to tell you, this is one of the rare times a poster of NeTalks is getting close to 3,000 reach. 3,000 reach. Okay, so Arjun's poster. Normally we used to have a reach of 1,000, 1,500 kind of stuff, and without boosting and all those things, 3,000 people reached. Okay. Anyway, that is that is great. Okay, with that introduction, with all your permission, I would welcome Arjun to NeTalks. Okay, Arjun, stage is on for you. And you can feel free to talk in Hindi में बात करना तो हिंदी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में बात करना तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मिक्सड करना तो मिक्सड कर सकते हैं, तमिल भी चलेगा, मलयालम भी चलेगा, जो भी चलेगा. Okay. Thank you, Satish and Sujit, for giving me this opportunity, and thank you all of you for being here. मुझे स्क्रीन शेयर करनी है ना पहले? कर लीजिए, आपको परमिशन दिया है, कर लीजिए. ओके, माया को-होस्ट है, आप कर लीजिए. ठीक है? या. ओके, तो मैं पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आर्ट कॉलेज मैं ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मुझे आर्ट के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं था. ठीक है, मैं 2003 में जब कोलकाता मूव किया, तो मैं अपने पढ़ाई के लिए, मैं स्टडी के लिए, क्योंकि उस टाइम अपने झारखंड में और कोलकाता का जो भी सिचुएशन था मेरे आसपास में दिखता था, क्योंकि जो लोग हमारे गांव के पढ़े लिखे जो यंग जनरेशन थे उस समय, तो पढ़ लिख के भी बेकार पढ़े हुए है ना. एक कम्युनिटी होता है कि सब घूमते फिरते रहते हैं, कोई काम का नहीं, और जॉब के लिए कोई अगर जिसके पास पैसा तो 4-5 लाख रुपया डोनेट करके वो घुस दे के ऐसे जॉब मिलता था. तो मेरे लिए वो मतलब संभव नहीं था कि मैं वहां पे पढ़ाई करके और कुछ कर सकूं. तो तब मैं 11 साल या 10 साल का था, तब मैंने कोलकाता मूव किया था मेरे पढ़ाई के लिए कि मैं कुछ करूंगा. फिर जब कोलकाता आया तो मैंने पार्ट टाइम जॉब एक ज्वाइन किया रेस्टोरेंट में. तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पढ़ाई
और ये जो ड्राइंग करने का, क्योंकि हमारे उधर एक कल्चर है, छठ पूजा होती है, तो उसपे लोग बहुत तरह के डेकोरेटिव ड्राइंग्स करते हैं घरों में, अल्पनास या फिर अ, रंगोली वगैरह करते हैं। तो ये इंस्पिरेशन मेरा वहाँ से था, मैं बचपन में ड्राइंग करता था। तो जब मैं इधर स्कूल जॉइन किया तो ये इच्छा समहाउ कहीं न कहीं मेरे अंदर था कि मैं ड्राइंग करूँ, पेंटिंग करूँ, लोगों को बैठा के जो मैं टा पार्ट टाइम जो जॉब करता था रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे लोग बैठते थे, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ इस तरह। तो इंस्पिरेशन यहाँ से था कि लोग तारीफ़ करते थे और मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था और अच्छा करने की। तो पता चला कि मैं आर्ट कॉलेज में पढ़ सकता हूँ, किसी ने मुझे बताया, तो मैंने फिर जॉइन किया। ये मेरा बिगिनिंग ड्राइंग है, मैं शुरू में लाइफ़ स्टडी जो करते हैं ना, स्टिल लाइफ़ या फिर आउटडोर स्केच करते हैं, तो एक्चुअली मेरा बाहर जाने का वो नहीं था कि कॉलेज फिर आके ड्यूटी करना होता था मुझे रेस्टोरेंट में। तो ये इंडोर स्टडी में करता था उस समय, आउटडोर में नहीं जा पाता था। ये सतीश, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे होगी ये? वो आपका उस ये जो प्रेजेंटेशन में ना एरो कीज रहेगा डेस्कटॉप में या लैपटॉप में कि डेस्कटॉप में हाँ, अर्जुन? हाँ, हाँ, है, हाँ, ठीक वो एरो कीज आगे पीछे ठीक करेगा तो ठीक है, जाएगा। ठीक, ओके। या ठीक है। तो अच्छा ये जो जो स्टडी है ना कि कैसे स्टडी करते हैं, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह मेरा नहीं था कि मैं आउटडोर जाके मैं स्टडी कर सकूँ। तो मैंने क्या किया कि इनडोर में क्या है मेरे अराउंड सराउंड, ये क्या है, जैसे कि ये जो आप लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में देख रहे हैं, ये आटा गूँथ के रखते हैं ना, रेस्टोरेंट में ढक के रखते हैं आटा, रोटी बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को मैं स्टडी करना शुरू किया। तो स्केचेस, ड्राइंग सब मैं उधर से ही करता था, इंडोर से करता था। फिर ये मेरे काम में ग्रेजुअली आस्ते-आस्ते धीरे-धीरे आना शुरू हुआ जब मैं एमएफए किया शुरू। तो जैसे कि ये ऐसे ये अपने रेस्टोरेंट में जो क्या बोलते हैं, पैकिंग पार्सल जो होती है ना, होम डिलीवरी के लिए, तो लोग खाना बना के, मतलब जो ऑर्डर आती है, वो नंबरिंग होता था कि ये है, आप पैकिंग करके रख दो, पैकिंग मैन आएगा, पार्सल मैन आएगा, वो उठा के ले जाएगा। तो ये आइडिया वहाँ से था मेरा, मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव स्टडी शुरू किया मैंने, ऑब्जेक्टिव चीज़ों को टच करना शुरू किया। जैसे कि ये है वो पनीर बनाते ना, पनीर का छना हैंग करके रखते पोटला। तो जब मैं ये एमएफए का मेरा काम है 2016। तो जब मैं क्या बोलते हैं उसको, काम करना जब शुरू किया एमएफए में, थोड़ा अपने आप को होता है ना कि कॉन्सेप्चुअली डेवलप करना था। तो थ्रू ऑब्जेक्ट में कैसे वो इमोशन को टच कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है, उन्हीं चीज़ों को टच करना शुरू किया थ्रू ऑब्जेक्ट। ये सब चीज़ों को मैं बहुत करीब से देखा हूँ, है ना? तो कि कैसे ये इसका प्रोसेस क्या है, ये खुद मैं करता था। दूध को ऐसे उबाल के फिर उसको इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी अटैच था। तो एक अचीवमेंट है कि आर्ट कॉलेज में लोग क्या सीखते हैं, उसको मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ कन्वर्ट करना शुरू किया, है ना? मटेरियलिस्टिक, कि वुड पे ये चीज़, एक सॉफ्ट चीज़ को वुड पे कैसे लगता है। तो ये मटेरियल ट्रांसफर जो है, ये मेरे पास थोड़ा चैलेंजिंग था और मैंने एक्सेप्ट किया उसको। मुझे काफ़ी एन्जॉय होती कि मैं एक सॉफ्ट चीज़ को हार्ड हार्ड वुड में कैसे इसको कन्वर्ट करें। तो उस टाइम मैंने किया था ये 2016 का वर्क। ये मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे मेरे लिए बहुत पर्सनल है ये वर्क, क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट जॉइन किया था, तो उस समय क्या है ना, चाइल्ड मूवमेंट का, लेबर चाइल्ड मूवमेंट का वो काफ़ी ज़ोर से चल रहा था। तो मेरा ऐसे एज 11 ईयर ओल्ड है, मैं बच्चा हूँ। तो मेरे जो रेस्टोरेंट का जो मालिक था, वो बोला कि तुम अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना वरना पुलिस पकड़ लेगा। तो ये एक पैथेटिक मैं फ़ील करता था उस समय कि अंदर अंदर कैसे वो डर सा रहता था कि मैं बाहर जाऊँगा तो कहीं वो पुलिस की गाड़ी उठा के ना ले जाए।
तो ये जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था ना कि ये बाहर और अंदर का जो मेरा लाइफ का 2 पार्ट क्या है, कि मैं जब उस दरवाजे से बाहर जाता हूँ, तब मेरा लाइफ अलग है। स्कूल दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो लाइफ और इनसाइड मेरा क्या एक अलग रेस्टोरेंट के अंदर जब जाता तो मेरा क्या लाइफ है। तो ये थ्रू ऑब्जेक्ट में उन सब चीज़ों को जैसे कि एक थैला है इधर कॉर्नर में आप देखोगे, ये आयरन प्लेट है ना आयरन, उसको कटिंग करके अ, अपने वुड प्लेट पे पेस्ट किया है, इनले किया हुआ है, ग्रुप काट के उसको चिपकाया हुआ है। इसका डिटेल्स इस तरह के कुछ हैं। तो ये थ्रू ऑब्जेक्ट में वो 2 स्टोरी को, मेरे लाइफ का 2 पार्ट को दरवाजे के अंदर क्या है और दरवाजे के बाहर क्या है, ये पुट किया था मैंने थ्रू ऑब्जेक्ट। मैं पहले एक्चुअली काफ़ी जो मेरा मास्टर्स ये सब मास्टर्स का काम है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर होगी शायद अ, जब मैं एमएफए कर रहा था। तो तब मैं काफ़ी पर्सनल चीज़ों को मैं ये करता था, अपने काम पे इंक्लूड करता था। फिर धीरे-धीरे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि वो ग्रेजुअली कैसे एक मेरे जैसा तो मैं सिर्फ़ नहीं हूँ, मेरे जैसा तो बहुत सारे लोग हैं कि कुछ ड्रीम्स होता है कि मैं ड्रीम्स जैसे कि सोच के आते हैं शहरों में कि ये करना है। फिर रियलिटी का कैसे सामना होता है ना, रियलिटी जब फेस करते हैं लोग, तो फिर उसका जो ड्रीम है वो समहाउ कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। हाँ, बंद एक जैसे कि संकुचित हो जाना जिसको कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, श्रिंक होता है। तो इन सब सब्जेक्ट के ऊपर अभी मैं रिसेंटली रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरे उधर से जो लोग यंग जनरेशन है, अभी उस समय जो कंडीशन था अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं लोग ऐसा है कि 8वीं 9वीं क्लास या फिर 10th क्लास के बाद सब शहरों में जाना पसंद करते हैं कि कुछ लाइवलीहुड के लिए कुछ अर्न करनी है ना? तो क्योंकि उनका बिलीव है एक ऐसे यंग जनरेशन जो हमारे उधर गिरिडीह का कि पढ़ पढ़ के मतलब ग्रेजुएटेड या फिर पोस्ट ग्रेजुएटेड होके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर जॉब करनी है तो फिर वो 4-5 लाख, 6 लाख ऐसे कोई मिडल वर्ग फैमिली नहीं दे सकता है ना? घूस दे के अपना वो जॉब नहीं ले सकता हर कोई। तो वो एक बन गया है, एक ब्रेन वॉश जैसा हो गया है, हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितने न्यू जनरेशन आ रहे हैं, सबका ये वो कंटिन्यूअसली वो चल रहा है दिमाग में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि उन लोगों से भी मिल रहा हूँ गाँव में जाके कि जो लोग 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं और इधर भी जो लोग रेस्टोरेंट में या फिर क्योंकि इन लोग कम पढ़े-लिखे होते हैं इंक्लूडिंग मी तब मैं बहुत ये नहीं था कि कुछ अच्छा जॉब और उतने बच्चे को आप क्या जॉब दे सकते हैं, है ना? 11th 12 ईयर के बच्चे को आप क्या जॉब देंगे? या तो चाय की दुकान पे जॉब मिलेगी या फिर किसी ढाबा टाइप रेस्टोरेंट पे। तो अभी वो चीज़ थोड़ा कम हुआ है बट वो अभी भी चल रहा है कि अ, य जो यंग जनरेशन है वो अपने पढ़ाई को ब्रेक करके बाहर जाते हैं, है ना? तो लाइफ जो है वो काफ़ी मतलब कम चीज़ों में लोग संतुष्ट हो जा रहे हैं, हाँ। आफ्टर 20 ईयर 22 इयर्स वो मैरिज हो जाएगा, उनका शादी हो जाएगा, फिर बच्चे होंगे। तो लाइफ कहीं न कहीं वो घूम फिर के एक होता है ना कि एक छोटी-सी दुनिया में घुट के रह जा रही है। तो मेरा अभी ये रिसेंटली मैं सोच रहा हूँ कि अगर उन लोग के साथ में कुछ कोलैबोरेटिव कुछ कर सकूँ या फिर प्रोत्साहित कर सकता हूँ उन लोगों को, तो ये कोशिश है मेरी। ये काम मेरा 2017 2017 का है। ये भी मेरा काम बहुत मेरे लिए पर्सनली बहुत क्लोज़ है क्योंकि मैं जो टूल्स यूज़ करता था, जिस रेस्टोरेंट में वो मेरे लिए सिर्फ़ मैं रखता था कि किसी को हाथ नहीं लगाने देता, कि मेरा टूल्स कोई छू नहीं सकता। तो वो जो इमोशनल रिलेशन है, जब मैं एक आर्ट कॉलेज में एक अचीवमेंट किया, एक स्किल को डेवलप किया या फिर एक क्राफ्टमैनशिप को मैं अचीव किया, तो उन सब चीज़ों को मैं ये मटेरियल चेंज करके कि कैसा वो फ़ील होता है ना,
ये रियलिस्टिक फॉर्म में कैसा लगेगा। मैं चपातीज़ उधर बनाता था, है ना? तो उस चपाती को भी आप वुड पे कैसे वो फ़ील हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने कन्वर्ट किया था। अ, ये काम अभी भी मेरे पास है। अमेजिंग। फिर मैंने वो सारी चीज़ों को जो मैंने बताया कि पहले स्टिल लाइफ़ जैसा मैं स्टडी करता था। अब धीरे-धीरे ये सब चीज़ें क्या है ना कि ऑब्जेक्ट कहीं न कहीं वही सब घूम फिर के है, बट मैं इसका अरेंजमेंट बोलो या फिर अ, एक विज़ुअल इफ़ेक्ट या फिर कॉन्सेप्चुअली अगर इसको रीड करेंगे तो एक्चुअल स्पेस में वो चीज़ें कैसे लगती है ना? तो मैंने ये सब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया कि अ, एक स रेस्टोरेंट मतलब ढाबा जो है, छोटा रेस्टोरेंट होता है, उसका स्टोर रूम में लोग रहते हैं, है ना? स्टाफ रूम भी होता है और स्टोर रूम भी सेम होता है। तो एक छोटे से स्पेस पे कैसे वो स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं अपने तरीके से। तो इन सब चीज़ों पे भी मैं अभी एक डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ और आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो मेरे काम पे कैसे आ रहा है। ये सब है ना, सब ये जो देख रहे हैं हर हैंगर में इंडिविजुअल अलग-अलग लोगों का सामान है। हाँ, और हर हैंगर का एक-एक हर किसी का नाम होता है, ये मेरा है। सर्टेन जब तक वो जितना दिन काम करेगा उतने दिन के लिए उसका है। उसपे कोई हैंग नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इमोशनल बातें हैं। एक समय होता है ना कि अगर आप इन लोगों से मिलेंगे, आप इनके पास जाएँगे तो वो चीज़ समझ में आएगा कि अलग कल्चर से लोग अदर-अदर स्टेट से आते हैं और एक जगह एक फैमिली की तरह रहते हैं। फिर उसपे भी डिवीज़न है। आप अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम तो वो समझ में नहीं आएगी, बट उनसे बातें करेंगे, उनके साथ में कभी-कभी रहता हूँ, रात में उन लोग के साथ रह जाता हूँ कभी-कभी। हर 2 या 3 महीने में विज़िट करता हूँ वो स्पेस को मैं। एक्चुअल स्पेस को उसमें क्या चेंजिंग है या फिर अ, अलग-अलग जगहों को मैं सेम मतलब रेस्टोरेंट हो या ढाबा हो ऐसे जगहों को मैं विज़िट करता हूँ। और ये जो वुड आप देख रहे हो एक ओल्ड वुड है ना ये सब वेदर्ड पुराने लकड़ियाँ हैं। मैं उधर से ही कलेक्ट करता हूँ जो कि बड़ा बाज़ार इलाका जो है आप अगर कोलकाता विज़िट किए हैं तो पता होगा कि बड़ा बाज़ार इलाका काफ़ी पुराना मतलब ब्रिटिश इंडिया के समय काफ़ी वो जगह डेवलप हुआ था और उस समय से काफ़ी पुराने आर्किटेक्चर हैं जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है जिस पे वुडन का वो यूज़ हुआ है ना? तो अभी जब सब पर्पस चेंज हो रहा है, पहले गोडाउन था या फिर वो स्टोर रूम के गोडाउन था, स्टोरेज था, जो स्ट्रैंड रोड पे, तो वो सारी चीज़ें जब ब्रिटिश वाले ने ये किया तो अभी चेंज हो रहा है वो लिविंग पर्पस के लिए लोग यूज़ करते हैं या फिर दूसरे किसी में छोटा रेस्टोरेंट हो गया या फिर तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे लिए और जब मैं उस सब जगहों पे जाता हूँ तो लगता है ना कि कभी भी मैं रास्ते में अगर गुज़रता हूँ, अगर साइड में कोई रेस्टोरेंट है या कोई ढाबा है, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि अंदर इसके क्या हो सकते हैं, इनका किचन कैसा हो सकता है। अ, इसका स्टोर रूम कैसा होगा? फिर वो एक अट्रैक्शन है मुझे अंदर तक लेके जाता है और एक होती है ना कि एक आप देखेंगे ये सब काम पे एक आर्काइवल फ़ील है कर्विंग का। होता है ना कि ऐसे आप मिट्टी को अगर कुदाल से खोदते हैं तो जो एक इफ़ेक्ट है मैं अपने टूल से कर्विंग करके वो इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की है कि वो आर्काइवल फ़ील लगे कि लकड़ी का एक सरफेस है जो पुरानी हो चुकी है और उसको आप अगर कर्विंग करते हैं तो अंदर का जो टेराकोटा एक फ़ील है अलग कलर है, कॉन्ट्रास्ट है ये। तो ये काफ़ी मेरे लिए काफ़ी एन्जॉय करता हूँ मैं ये इन सब चीज़ों को। अ, आप अगर देखेंगे कि जो रेस्टोरेंट का होता है ना छोटे-छोटे रेस्टोरेंट का वो जो आउटसाइड जो खाने-पीने का जो जगह होता है वो काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी एकदम साफ-सुथरी जगह होती है। वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन लाइट वगैरह लगा हुआ है। बट अगर इनसाइड आप किचन में जाते हो या स्टोर रूम पे जाते हो तो
वो बहुत कंट्रास्ट है। एकदम अंदर में पूरा नज़ारा चेंज मिलेगा आपको। काफ़ी काले धब्बे मिलेंगे, काफ़ी तेल का लेयर मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि ये लोग साफ़ नहीं करते। आप अ, 1 महीने, डेढ़ महीने जब हो जाती है ना पुरानी सरफ़ेस हो जाती है, फिर उसको साफ़ करते हैं। तो साफ़ करने के जो दौरान जो एक लेयर निकलता है, फिर वो नई दीवार एक निकलती है अंदर से। तो ऐसा लगता है कि एक मतलब आर्काइवल फ़ील है उसमें। हाँ, तो उन सब चीज़ों को मैं टच करने की कोशिश करता हूँ अपने काम पे। इस पे आप अगर देखेंगे तो जैसे कि ये है ना ये टेबल है वो खाने बनाने के ठीक भट्टी के सामने रखते हैं, उसपे खाना बना के डालते हैं लोग। छोटे-छोटे होटलों में ये सब यूज़ होता है। ये पूरे काले धब्बे पड़-पड़ के पुराने हो जाते हैं। फिर 1 महीना बाद इसको जब स्क्रैच करके पूरा साफ करते हैं तो न्यू वुडन का एक फ़ील होता है। नया एक फर्नीचर जैसा लगता है। तो बस मतलब वो फ़ील डालने के लिए ये लकड़ी का सिलेक्शन है मेरा। और चूँकि ये लकड़ी उधर का ही एक हिस्सा है, उधर से ही मैं कलेक्ट करता हूँ। जब कोई बिल्डिंग टूटती है या फिर ऐसे पुराने रेस्टोरेंट बंद होते हैं या फिर तो इनका एक कलेक्शन होता है कोलकाता में पर्टिकुलर 4-5 जगहों पे मेरा कॉन्टैक्ट है, कि लोग जब ऐसे कलेक्ट करते हैं तो मुझे कॉल करते हैं कि ऐसा कलेक्शन में आया आप ले सकते हो। तो मैं इन लोगों से वो लॉट खरीदता हूँ मैं लकड़ियों का। ये अपना डलहौज़ी एक जगह है जो कोलकाता की काफ़ी मशहूर जगह है। अपना अ, मिडिल मिडिल कोलकाता बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या है कि ऐसे कंटिन्यू बहुत सारे फूड स्टॉल हैं रास्ते में, है ना? ये जगह का नाम अपना बैंकर स्ट्रीट बोलते हैं जहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया पहले अभी भी है। अ, है तो वो स्ट्रीट को बैंकर स्ट्रीट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है ऑफ़िशियल बिल्डिंग्स बहुत सारे हैं और ये फूड स्टॉल कंटिन्यू आपको लगभग 1.5 किलोमीटर तक मिलेंगे। वो रास्ता पूरे फूड स्टॉल से भरा हुआ है। तो ठीक 12 बजते ही दिन में दोपहर के 12 से 3 के बीच फुल्ली एक्टिव रहता है। आप इस पे जाना मतलब पसंद नहीं करेंगे, इतना भीड़ होता है। सारे ऑफिस में जो वर्कर्स हैं या फिर आसपास के जो लोग काम करने वाले लोग हैं, सब इधर आके खाना खाते हैं और ये मतलब अजीब-सा लगेगा आपको कि अगर आप मॉर्निंग में विज़िट करे हैं, इसको किए हैं और फिर आप दोपहर में जाते सेम प्लेस पे, तो इसका काफ़ी चेंज मिलेगा आपको, सिर्फ़ भीड़ के वजह से। और इस पे क्या है कि उस जगह पे आप मतलब आप अलग से नहीं देख सकते कुछ। ऐसा नहीं कि कौन-सा स्टॉल किसका है, इसका है या उसका है। तो ये कंटिन्यूअसली एक लगेगा कि ये एक ही है, बस चलता जा रहा है 1 डेढ़ किलोमीटर तक एक ही दुकान है। तो ओनरशिप किसका है कुछ पता नहीं चलेगा। वो कंटिन्यूअसली जो इसी ये जो थ्रू ऑब्जेक्ट में उस चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि ये इरेशनल जक्स्टापोज़िशन बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंपेयर करेंगे तो छोटा-बड़ा ऐसा नहीं है, बस मुझे जो स्पेस में अच्छा लगा मैंने पुट किया इसको। तो आप अगर उस स्ट्रीट में विज़िट करते तो कुछ ऐसा ही फ़ील होगा कि कौन-सा ऑब्जेक्ट क्या नहीं जस्ट कंटिन्यू आप देखते जाओ और देखते जाओ एकदम वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये सब पुराने बीम देख रहे हैं मेरे काम पे मास्टर डिग्री से जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब से आना शुरू हुआ और ये कंटिन्यू अभी भी मैं कर रहा हूँ। ये एक्चुअल स्पेस का क्रॉप्ड इमेज है। ये जो मिडिल वाला आप देख रहे हैं पैनल, इस कॉर्नर में मैं एक समय चपाती बेलता था, चपाती बनाता था। तो ये विंडो मेरे लिए मतलब बहुत क्लोज़ था उस समय। ये विंडो इधर से हवा आती थी क्योंकि एग्ज़ॉस्ट फैन है बट उसका कोई वायर कनेक्शन नहीं है। उसमें कोई अ, वो एक्टिव नहीं है, फैन चलता नहीं है।
तो विंडो हमेशा खोल के रखते थे, क्योंकि भट्ठी के सामने आप अगर खड़े होते तो काफ़ी गर्मी फ़ील होता था। तो उससे जो हवा आती थी वो रिफ्रेशनेस मुझे हमेशा ताज़ी करती थी। इसलिए मैं ये अपने काम पे कहीं-कहीं दिखाया हूँ। और ये अपनी उधर का है जिधर मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, अभी कंटिन्यूअली मैं विज़िट करता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ मैं जाके, फ़ोटो खींचता हूँ। मेरा काम भी उन लोगों से शेयर करता हूँ लैपटॉप पे। वो लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं कि रिलेट कर पाते हैं। मैं जो काम करता हूँ, कहीं न कहीं बहुत ही ईज़ी तरीके से उन लोग रिलेट करते हैं। अर्जुन, वो रेस्टोरेंट्स का ओनर्स को दिखाते क्या है ये काम? उनसे अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं जाता हूँ बीच-बीच में, उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ। नहीं, उन्होंने काफ़ी मुझे होता है ना कि बूस्ट किया मुझे, एक एनकरेज किया मुझे। मैं जब इतना छोटा था, उस समय मैं डरता था कि बाहर कैसे जाऊँ, पुलिस पकड़ेगा। तो उन्होंने बोला था कि बेटा तू डर मत, तुम अंदर ही रहो और तुम जो करना चाहो काम करो, नहीं करो कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी मुझे लगता था कि अगर इतना मुझे वो अलाउ कर रहा तो मेरे तरफ से भी जो हो सकता मैं करूँगा। तो जब मैंने स्कूल जॉइन किया था, तो मैंने उनसे बात की थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ इसलिए मैं ये कोलकाता आया हूँ, तो आप अगर अलाउ करते तो ठीक है, नहीं तो मुझे दूसरा रास्ता देखना होगा। तो उन्होंने बोला था ठीक है आप जितना ड्यूटी करो, करो, पढ़ाई करो, मैं हैप्पी हूँ। तो फिर मैंने भी सेटिंग किया टाइम कि कैसे उन वहाँ पे मैं जो 8 आवर का जो ड्यूटी है उसको मैं कैसे मैनेज करके अपनी स्कूलिंग कर सकता हूँ, है ना? तो मॉर्निंग में अगर स्कूल है तो मैं 11 एएम मेरा छुट्टी होता था स्कूल से, फिर आके मैं 12 से ड्यूटी करता था। हुँ, ये ये काम ये सवाल आ गया है कि शेफ बनने के लिए सोचा था क्या? नहीं, कोई शांति पूछती। क्या-क्या? शेफ शेफ जो कुक बनने के लिए सोचा था नहीं, क्या? नहीं। एक एक हाँ, एक इच्छा था क्योंकि वो काम भी मैं काफ़ी एन्जॉय करता हूँ। अभी भी मैं मेरे स्टूडियो में सारे सेटअप हैं खाने बनाने के। मैं वीकली मैं कुछ खुद सेलिब्रेट करता, अगर कोई दोस्त ना भी हैं, ऐसे हमारे स्टूडियो में दोस्त आते रहते हैं और हमेशा मैं सेलिब्रेट करता हूँ। खाना पकाना भी एक आर्ट है। तो मैं उस समय भी एन्जॉय करता था और अब भी एन्जॉय करता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ नया बना के खाने का, खिलाने का, तो ये शौक अभी भी है मेरा। और ऐसा नहीं है कि मैं वो काम सिर्फ़ अपनी पढ़ाई के लिए किया हूँ। मैं वो काम भी काफ़ी ऑनेस्टली किया हूँ और अच्छे-अच्छे जगहों से ऑफ़र भी आया था मुझे, जैसे कि अपने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट के जो मेरे कलीग्स थे, उन लोग के जान-पहचान वाले लोग। तो उन लोग मुझे ऑफ़र ऑफ़र किए थे कि आप आ सकते हो इधर, ज़्यादा सैलरी मिल सकती है आपको। तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ़ वो रेस्टोरेंट में काम करनी इसलिए मैं कोलकाता नहीं आया हूँ। तो समहाउ मेरा एक एम था, मैं एक टारगेट लेके चल रहा था तब से। ये काम आप देखेंगे अगर बड़ा बाज़ार आप कभी आते हैं, विज़िट करते हैं, तो देखेंगे उधर हर पुरानी बिल्डिंग में एक छोटा-सा रूम होता है, ठीक दरवाजे के सामने। वो दरवाजे के सामने पहले पता नहीं किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था वो, बट अभी या तो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन जो मैकेनिकल जो लोग जो बिल्डिंग में पूरे बिल्डिंग में काम करते हैं, प्लम्बर है या फिर तो ऐसे लोग रहते हैं, 4-5 लोग मिलके एक छोटे से 8 बाय 8 रूम पे कैसे रहते हैं उन लोग। और इनका जो ऑब्जेक्ट हैंगिंग जो है, आपको पता नहीं चलेगा कि पहले से क्या है और अभी उन लोग क्या पुट किए हैं। क्योंकि आप ये ड्रेनेज का ये पाइपलाइन देखेंगे, तो ये पहले से मौजूद था उधर, है ना? और ये बैग वगैरह ये अपना अ, एग्ज़ॉस्ट फैन, ये सब पहले से है उधर, बट फिर भी उन लोग जो पुट करते हैं सामान जैसे कि झोला या फिर कपड़े, तो एक अ, ऐसे धूल-मिट्टी ऐसे लग लग के ऐसे हो जाता है, पुराना ऐसा हो जाता है कि सरफेस काफ़ी ना काफ़ी हद तक एक ही जैसा लगेगा आपको, है ना? तो क्या पहले से है, क्या बाद में, ये डिफाइन करना फर्स्ट फर्स्ट विज़ुअल में वो आप अलग नहीं कर सकते उसको। तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका भी एक स्टोरी है। आप अगर राइट साइड जो कॉर्नर अपर कॉर्नर में अपना एक जूता रैप करके रखा हुआ ना, Hmm. Yes.
ये ये जो अपना लेफ्ट साइड स्क्रीन में आ रहा है, हाँ, तो ये है ना, ये न्यू शू जब लोग खरीदते हैं या फिर पहनते हैं, यूज़ करते हैं, तो या तो घर जाने के लिए उसको यूज़ करते हैं या फिर सिर्फ़ घर आने के टाइम। फिर वो सारा 6 महीना या साल भर जितने दिन रहेंगे, उसको रैप करके बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। तो ये जो इमोशंस है, ये छोटी-छोटी चीज़ों को काफ़ी स्टोरीज़ है इसमें। मैं थ्रू ऑब्जेक्ट वो स्टोरी कैच करता हूँ अपने काम पे, क्योंकि मैं भी ऐसा किया हूँ एक टाइम। सॉरी, ये आप देखेंगे, ये पूरा मैनुअल वो है ना, वायर का जो वीविंग है। मैं मशीन यूज़ नहीं करता हूँ अपने काम पे, कोई सब अपने टूल्स हैं कुछ। You're using wood as a clay, man. That effort, I can feel that, like it's very tough, but I don't know. Like most of your works look like you did it in clay. Amazing. हाँ, ये आप सतीश सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वुड का सिलेक्शन है ना, Hmm. वो कहीं न कहीं एक होता है ना कि टेराकोटा का फ़ील है, आप अगर आप सही बोले। Mhm. तो ये वुड सिलेक्शन का भी वो मैं सोचता हूँ कि एक जो फ़ैमिलियर लुक, मतलब विज़ुअल Mhm. जो लुक है, क्योंकि Mhm. हम मॉडलिंग किए हैं, टेराकोटा में भी काम किए हैं। Mhm. तो और पुराने वुड का एक अलग मज़ा है कि जब सरफेस ओल्ड हो जाती है, अपना वेदर्ड हो Mhm. जाती है, फिर जब उस पे आप कर्विंग करते हो, तो आप अपर सरफेस को भी निकालना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इतना मज़ेदार एक कॉन्ट्रास्ट होता है दोनों के बीच, Mhm. अपर सरफेस और इनर सरफेस में। तो मैं एन्जॉय करता हूँ। ये आप मैं थोड़ी देर पहले जो बताया वो छोटा-सा रूम के बारे में, Mhm. वो काम ये काम उसी आइडिया पे बेस्ड था Mhm. कि एक छोटे से रूम पे आप अगर 4 कॉर्नर अगर विज़िट करते हो, तो चारों कॉर्नर में ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर आप रियलाइज़ करेंगे ऑब्जेक्ट देख के, तो आपको लगेगा वो 4 लोगों का कॉर्नर है ना? तो मैंने ये जो बीम है, इस पे एक पाइपलाइन का जो वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन है, फिर वो क्या वो प्लम्बर है तो वो क्या-क्या ऑब्जेक्ट यूज़ करता है ना? ये छोटे-छोटे खोप में मैंने उनका डिटेल्स डाला था, इसमें फ़ोटोग्राफ में नहीं आ रहा है पूरा, इसका मेरे पास डिटेल्स फ़ोटोग्राफ भी नहीं है। तो चारों तरफ है ना, वो बीम के चारों तरफ मैंने वैसा ही ऑब्जेक्ट पुट किया है, Mhm. जो जो आइडेंटिटी लोग का है ना? कि ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हो सकता है, कौन हो सकता है उस कॉर्नर में। तो आप देखोगे तो समझ में आएगा, वो अगर आप वो रूम विज़िट करते हैं, है ना? आप किधर शो किया है? ये अपना बिरला बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड हाँ, क्राफ्ट कोलकाता, उधर मुझे अवार्ड मिला था एक काम पे, तो ओके। जो 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 लोगों को अवार्ड मिलता है, उन लोगों का एक शो होता है, उसी शो में ये काम था हाँ। मेरा। फिर एक धी आर्ट स्पेस बोल के हैदराबाद में जो हाँ, गैलरी, भार्गवी। हाँ, उधर भी नहीं, ये शो भार्गवी अभी नहीं। भी शायद है, कंटिन्यू चल रहा है वो। हम्म, भार्गवी ना, भार्गवी हाँ, से। हाँ, हाँ। ये एक स्टोर होता है ना, स्टोर रूम, उसको अ, एक मतलब किचन के अपर साइड अ, एक छत जैसा बना के उस पे स्टोर रूम बनाते हैं। फिर उस पे भी बहुत सारे शेल्फ जैसे स्पेस डिज़ाइन करते हैं। ये काम उधर एक्चुअल फ़ोटोग्राफ मेरे पास नहीं है अभी। मैं उधर से फ़ोटोग्राफ करके एक्चुअली मैं काम जो करता हूँ, पहले फ़ोटोग्राफ करता हूँ, पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ, उस स्पेस को विज़िट करता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ, है ना? फिर मैं अपने काम को डेवलप करता हूँ। तो ये लकड़ी मुझे उधर ही मिला था, जो ये लकड़ी का टुकड़ा, है ना? 18 इंच बाई अपना ये है, 18 बाई 18 का है, छोटा-सा इतना। तो उधर पड़ा हुआ था, पुराने, ये और गंदा लग रहा था तब देखने में, काफ़ी धूल-मिट्टी जमा था। तो जब मैं विज़िट किया उस स्पेस को, मैंने वो रेस्टोरेंट के जो मालिक था उनको मैं बोला कि ये वुड में ले जा सकता हूँ? बोला, "अरे! क्या करोगे इसका?"
फेंका हुआ है, ले जाओ। फिर जब मैं इसको बना के उनको दिखाया तो बोल रहा यार तुम जादूगर हो। तो फिर उन लोगों को भी मैं दिखाया जो लोग वहाँ काम करते हैं। काफ़ी हैप्पी हुए। अर्जुन, एक सवाल ये हाँ, पूछा है सविता की, कितना टाइम लगता है ऐसा काम करने के लिए, और ऐसे इसमें ऐसा सॉफ्ट ऐसा फील कैसे आ रहा है? देखिए एक मैं बताया ना कि मैं कॉलेज लाइफ से ही जब मैं क्योंकि मुझे जब मैं कॉलेज एडमिशन लिया तो मुझे पता नहीं था स्कल्पचर क्या होता है, अपना अप्लाइड आर्ट क्या है या ग्राफिक क्या है। जस्ट एक दिमाग में पेंटिंग करने का भूत सवार था। मैं कॉलेज इन किया फिर पता चला कि इसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। फिर 1 साल जब फाउंडेशन किया तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली स्कल्पचर लगा। ये मैं बहुत सारे तरीके से मैं कर सकता हूँ, ऐसा लगा था उस समय। फिर मैंने स्कल्पचर जॉइन किया। तो वो शुरू से ही है ना कि स्कल्पचर लिए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चैलेंजिंग है। तो शमा वो दिमाग में तब से चल रहा था कि वुड में अच्छा-अच्छा ये हो सकता है, इसमें और क्या हो सकता है ना? तो वो वहाँ से मेरा जो स्किल डेवलप है या फिर एक क्राफ्टमैनशिप का जो स्किल है, मैंने वहाँ से डेवलप करना शुरू किया। तब मैं चैलेंज की तरह लेता था कि वुड को और कैसे आप प्रेज़ेंट कर सकते हो, एक हार्ड मटेरियल को सॉफ्ट फील कैसे ला सकते हैं। सॉरी, Yeah, go ahead. अरे चेंज नहीं हो रही है। I get that. वो ना अर्जुन, वो हाँ, हाँ। माउस ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड में क्लिक कर लो, उसके बाद में आपका लैपटॉप या कंप्यूटर का एरो की से चलेगा, कंप्यूटर का एरो की से चलेगा। बट एक बार माउस पहले उस पर क्लिक करने का स्लाइड में। Slide जाके. आई थिंक सवाल था कि सॉफ्टनेस कैसे लाते हो तुम, लाइक इट्स रियली अमेजिंग, इट्स लाइक टैलेंट। टैलेंट है कि कुछ स्किल है, लाइक क्या सीक्रेट नहीं बताना चाह रहे आप? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को अगर ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व करते करते हैं, तो उसका जो फ़ील है ना एक्चुअल आप ये तो दिमाग में रहता है, फिर आप अगर सामने से उसका Yes. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो बहुत काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपके लिए। आई और थिंक या आई गेट यू। आप अपना फीलिंग उसमें डालते हो, वो दिखता है, क्योंकि लोग काफी लोग पेंटिंग करते हैं, बट कई लोग जो पोर्ट्रेट बनाते हैं, इवन सुंदर पोर्ट्रेट बनाए, लेकिन उसमें जान नहीं रहता है। हुँ, हुँ। कई लोग ऐसे हैं जो जान लाते हैं, और वो पता नहीं, वो आ जाता है, उसमें स्किल का कोई ये नहीं होता है, मतलब ताल्लुक नहीं True. True. है। या Okay. ओके, थैंक यू। सतीश कैन यू चेंज स्क्रीन? मेरा वो माउस नहीं, काम नहीं कर रहा है। अच्छा एक मिनट देखता हूँ। ओके, माउस नहीं चल रहा है क्या? नहीं है? हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप क्लोज, मैं क्लोज कर लेता हूँ आपका। बात कर लीजिए, गिव मी ए मिनट, Yeah. तब तक मैं कर लेता हूँ। You people keep When talking when about this when do you soft skill. start your this woodwork? How are you into that wood, especially as a medium? ये मेरा मास्टर्स ऐसे वुड पे मैंने स्टडी ऑब्जेक्ट किया था जो फोटोग्राफ इधर नहीं है, बीएफए में Mm-hmm. मैंने किया था। Mm-hmm. फिर मैंने वो एकेडमिकल जो सिस्टम है ना कि आपको वुड कर्विंग करनी है, स्टोन कर्विंग करनी है, टेराकोटा Uh-huh. करना, तो क्लास वाइज वो सारी चीजें किया मैंने फिर Mm. उस हिसाब से मैंने वुड कर्विंग 2 वुड कर्विंग किया था क्लास के दौरान। फिर एमएफए में मैंने वुड को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। हाँ, और मैक्सिमम तब से मैं वुड पे अभी भी कंटिन्यू मैक्सिमम काम मेरा वुड पे ही होता है। Mm-hmm. Okay. So from that you started working in wood. Amazing work. Huh? I love it. थैंक यू। Yeah. फिर It's वो not एक over. It's not over yet, but the first impression, how much.
Amazing in a way that what you call that paneer, this thing, no? What you call that? What do you call Yeah, paneer? बिल्कुल सही। Yeah, Potla, paneer, potla. hanging पोटला, paneer या rolls, like you can Yeah. या It's almost तो सतीश, ऐसा सुजीत, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फूड पे काम करता हूँ, और no, भी no, ऐसे I'm very interested to ask. Yeah, very interesting. Interestingly, you're using that medium, like that's why I asked. I've seen some of your painting also. ओके, या Are you Yeah, going to what? do paintings also? I mean, after this? या यू कैन सी नेक्स्ट नेक्स्ट Yeah, स्लाइड। I've seen some of this. Also, Kolkata has this wherever you go in the street, you feel that now that old look. Most of the even new thing look like very old, like very या दैट antique इज piece, because of a lot of dust sort of a thing or something. I या don't know दैट इज why. कॉल्ड स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड Okay. रोड, Oh, Strand Road. Yeah, I've been there. Yeah, yeah, द I was बेल्ट, there. यू नो, ये हुगली नदी के ठीक किनारे, Uh, जो अपने uh-huh. ब्रिटिश इंडिया जब डेवलप हुआ था कोलकाता, Uh-huh. तो वो रास्ता सबसे पहले डेवलप किया गया था, क्योंकि Okay. ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे सुविधा था वो जगह। Mm-hmm. Okay. तो आप अगर उधर जाते तो कोबल स्टोन अभी मिलेगा आपको सरफेस Uh-huh. पे, रास्ते में, वो Mhm. पुराने आर्किटेक्चर का जो फील है। फिर सेंट्रल बैंक का पुराना सबसे ब्रांच कोलकाता में है अभी भी। Mm-hmm. तो काफी चीजें हैं, मैं उन सब चीजों को देखा हूँ। Yeah. और अभी भी कोलकाता अगर आप आते हैं, बड़ा बाजार अगर स्ट्रैंड रोड आप विजिट करते हैं, तो वो Yeah. जो Anyway, we get. Yeah. पुराने सिटी का फील है, वो आप वहां से फील कर सकते हैं। Mm. Anyway, we get good food now in your home, in your studio. We'll come there soon. या श्योर। दिख रहे हैं ना अर्जुन? हाँ हाँ, दिख रहा है। यू कैन टॉक, मैं Okay. स्लाइड चेंज करूंगा, आप बात कर लीजिए। ये सतीश, वो वहीं से स्लाइड है जहाँ पे मैं बात कर रहा था। ये है ना? हाँ हाँ Yeah. हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, ठीक है, आप नेक्स्ट कीजिए। ये कुछ ड्राइंग्स है, मैंने स्विट्जरलैंड में जब एक रेसिडेंसी में गया था मैं 2019 जनवरी से 6 मंथ के लिए। तो ये ड्राइंग का सीरीज मैंने उधर से स्टार्ट किया था, शुरू इन बिगनिंग। मेरे साथ क्या फॉलो कर रहे हैं मुझे, है ना। तो उन सब चीजों को मेरे ही यूज किया हुआ ये सब क्लोथेस, ये सब है। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इसका और भी सीरीज का काम है। हाँ, ये सारी चीजें पेपर के ऊपर इंक से मैंने Uncle. ड्राइंग किया था। काफी थोड़ा रियलिस्टिक मुझे ड्राइंग करना पसंद है। अभी कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे ड्राइंग्स में करता हूँ बीच बीच में। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो कुछ सवाल है प्रीवियसली ये इसमें पूछा था कि ये मींस कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं और अच्छा अच्छा, कौन सा इंक यूज कर रहे हैं, इंक फेड हाँ, करता है क्या, वो सब पूछते हैं। ये सब नॉर्मली जो इंडियन इंक है ना, वो मैं यूज करता हूँ। और ये ब्राउन शीट पेपर होता है, ये स्विट्जरलैंड में एसिड फ्री ब्राउन शीट पेपर है, ब्राउन पेपर है। हमारे यहाँ शायद अवेलेबल है, नहीं पता नहीं मुझे, बट ये ब्राउन पेपर एसिड फ्री मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ मिला था। मैं इसको ऐसे सरफेस पे मैं यहाँ भी ड्राइंग किया हूँ, अपने इंडिया में भी, कोलकाता में अपने स्टूडियो में। तो ये जब मुझे उधर देखा, मैंने काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इंक से ड्राइंग करना शुरू किया, और सब शुरू, मतलब आप कहीं अगर अदर जगह में जाते हैं, एक अपना स्टूडियो प्रैक्टिस अलग चीज है। आप अगर अलग से अलग कल्चर में जाते हैं, कहाँ से शुरू करें, एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो मैंने जो मैं जैसे ड्राइंग करता था अपने स्टूडियो में, वैसा ही शुरू करने की कोशिश किया था। और एक ड्राइंग पैड था, मैंने बस स्टार्टिंग किया था यहाँ से। आप नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। हाँ, ये सब
जो आप डार्क कलर देख रहे हैं, कलर बैक साइड में है, ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है ना, A4 साइज का। उसके ऊपर मैंने बैक साइड कलर लगाया था और फिर वो कलर को रिमूव करके, स्क्रैच करके, रिमूव करके ये ड्राइंग मैंने डेवलप किया था। ये भी मेरा स्विट्जरलैंड में मैंने किया था। ये एक आराउ सिटी जो है, जिस जगह पे मैं था वहाँ पे, तो अ, उसका एक आरे नदी है ना, नदी के किनारे ठीक सिटी है, बहुत पुरानी सिटी है। और उसका जो ब्रिज है नदी के ऊपर, उस समय रिपेयरिंग हो रहा है। प्रिपरेशन हो रहा था कि उस ब्रिज को तोड़ के नया बनाया जाएगा, तो उसका प्रिपरेशन पहले से सारे सिस्टम को ठीक कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर वो ब्रिज को तोड़ा जाएगा। तो जो काम करने का जो ये था, सिस्टम था, कैसे वो लोग एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, है ना? वो कोबलस्टोन है पूरे रास्ते में, उसको उठा के फिर से रिपेयरिंग करके, फिर ढलाई करके, उसको तोड़ के फिर वापस वो कोबलस्टोन डाल के अपने एकदम अ, पहले जैसा कर देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि मैंने पहली बार देख रहा था सब ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड जाएँगे सतीश? ये भी कलर जो है मैंने बैक साइड से किया है इस पे, इस ड्राइंग में, और सामने से मैंने इसको बर्न किया है। इलेक्ट्रिक शोल्डर होती है ना, उससे बर्न करके ये बबल्स क्रिएट किया था। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का इच्छा हो रहा था, मैंने किया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इसका। नेक्स्ट स्लाइड जाएँगे सतीश? एक सवाल भी आ रहा है प्रोजेक्टा हाँ, से, बोलिए। आप ऑब्जेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जर्विंग सिस्टम जो है, मैं जो देखता हूँ सराउंडिंग, फिर वो रिलेट करता हूँ अपने आप से। जैसे कि मैं जो पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड की अगर बात करूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसे कम्युनिटी से मुझे मिलना था जो कि एक माइग्रेटेड दूसरे जगहों से आके काम करते हैं। तो ये जो टीम वाइज़ जो काम कर रहे थे, समहाउ कहीं न कहीं सब स्पेशल हायर किए हुए हैं ना। कुछ लोग इटाली से हैं, कुछ लोग अपना स्पेन से है, कुछ लोग फ्रांस से आते हैं। तो स्पेशल है हर हर लेयर के लिए उन लोग, जैसे कोबलस्टोन जो बैठाते हैं ना, पुर्तगीज़ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं उसमें, बहुत प्रॉपर तरीके से उन लोग बैठाते, तो उनका टीम आता है कोबलस्टोन बैठाने के लिए। और जो एक नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे, मैं बात कर रहा हूँ। सतीश? या तो ये जो है ना, मतलब एक एक टीम आती है, उसको ड्राइंग करके कहाँ-कहाँ तोड़नी है, कुछ कोड वर्ड यूज़ करते हैं उन लोग। तोड़ के उसको तोड़ने वाली टीम अलग से आती है कि मशीन वगैरह जो चलाते हैं उसका एक्सपर्ट अलग है। फिर उसको रिपेयरिंग जो अंदर क्या पाइपलाइन है, क्या सब ठीक करना, उसका टीम अलग है। तो सारे लोग अलग-अलग देशों से हैं वहाँ पे। स्विट्ज़रलैंड ऐसा एक देश है, मतलब कि सब स्पेशल लोगों को ही हायर करते हैं वहाँ पे, स्पेशलिस्ट को। तो हाँ, पैसा काफ़ी मिलता है वहाँ पे बट अलग-अलग देशों से कैसे, फिर उन लोग से मैं बात करके अब मुझे पता चला कि जब मैं अपने गाँव जाता हूँ, है ना? तो आई फ़ील लाइक अ सेलिब्रिटी, यू नो, बच्चे लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के लिए कुछ कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ। तो एक सेलिब्रिटी जैसा फ़ील होता है खुद में। मैं पता नहीं उन लोग क्या सोचते हैं। और मैं अपना रियलिटी मैं जानता था, है ना? जब मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो मैं अपना रियलिटी मैं जानता हूँ कि मैं इधर कैसे, मेरा लाइफ़स्टाइल क्या है, मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे रहता हूँ। और जब मैं गाँव जाता हूँ तो मैं एकदम सेलिब्रिटी के जैसा फ़ील करता हूँ, वैसे बन-ठन के रहता हूँ, है ना? तो तो ये सब उन लोग भी ऐसा ही है, मतलब कुछ ये नहीं है, उन लोग भी जब वापस जाते हैं तो बोलते कि हम स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड नाम सुन के उनके आस-पास के लोग उनको बहुत सम्मान, ऊँचे दर्जे से लोग देखते हैं। तो उन लोगों से मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, बट कम्युनिकेशन मैं समझा पाता था उन लोगों का, और उन लोग भी मुझे समझाने में कोशिश करते थे, क्योंकि उन लोग का भी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था।
कोई पुर्तगीज बोलता है, कोई इटालियन बोलता है, कोई स्पेनिश है, कोई फ्रेंच में, कोई जर्मन में बोलता है। तो बट एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, वो समझ में आता था। नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे सतीश? या उसमें एक सवाल था कि हाँ, सविता हाँ। के ये जो ब्लैक कलर जो इसमें बीच हाँ, का हाँ। आज इसमें वो ये कैसे आ गया, वो सारा डिटेल बताएगा। ये ब्लैक कलर में एक ट्रांसपेरेंट पेपर जो कि गेटवे पेपर बोलते हैं ना हम लोग, उसके बैक साइड मैंने कलर कोटिंग किया, इसके साथ क्ले मिक्स किया मैंने, सिंथेटिक क्ले। इसका नहीं, नेक्स्ट स्लाइड वाले। हाँ, ये वाली सीरीज में मैंने बैक साइड में सिंथेटिक क्ले और अपना एक डार्क कलर, ब्लूइश डार्क कलर मैंने कोटिंग किया मिक्स करके। फिर पेपर को उल्टा के उल्टे साइड पे मैंने बर्न किया है। यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप वीडियो था, अगर आप चला पाएंगे क्या? मेरे लैपटॉप में चल रहा था, डेस्कटॉप में। किस इसमें है क्या? हाँ, एक छोटा सा, इसके बाद वाली या फिर पहले वाली स्लाइड में होगी। ये जो ब्लैक जो दिखती यही होगा वो, उसमें तो मेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक दिख रहा है मेरा। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा डेस्कटॉप में भी नहीं दिखा रहा था। हम्म। तो ये इलेक्ट्रिक शोल्डर होती ना, जो मोबाइल रिपेयरिंग या फिर वो सब सोल्ड करने के लिए यूज करते, जो वो मैंने वो टूल्स यूज किया था इसके ऊपर। और ये व्हाइट कलर का जो बबल्स जैसा है, वो हीट के कारण बबल्स क्रिएट हुआ है। तो ये एक्सीडेंटली हुआ था, क्योंकि मेरा एक ड्राइंग पे ज्यादा कलर चला गया था, तो गेटवे पेपर डाल के मैंने उस पे आयरन प्रेस किया, तो देखा उसमें बबल्स क्रिएट हुए। फिर मैंने वो आइडिया आया कि ऐसा कर सकता हूँ मैं, एक डार्क कॉन्ट्रास्ट के ऊपर ये बबल्स क्रिएट करूँ, तो कुछ ऐसा। ये शुरू के कुछ दिन गुजर जाने के बाद स्विट्जरलैंड में, जब मैं मुझे साइकिल जब मिला, तो एक्चुअली मैं जगह को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। तो साइकिल मिलने के बाद कभी जंगल जाता, कभी पहाड़ियों के बीच, कभी तो काफी घूमा उधर। फिर वो मटेरियल के बारे में सोच रहा था कुछ। मैं तो इधर वुड कर्विंग या फिर ड्राइंग पेंटिंग कर ही रहा था। वहां जाके मैं उधर का लोकल मटेरियल के साथ कैसे मैं अटैच होता हूँ, है ना। तो ये ट्विक्स जो है पाइन वुड का, मतलब जो मॉर्निंग में जब मैं जाता था, तो बहुत सारे रास्ते में पड़े मिलते थे, और जब वापस आता तो पूरा क्लीन मिलता था, एकदम 1 घंटे के अंदर पूरा एकदम साफ सुथरा हो जाता था। तो ये मैं सोचा कि क्यों ना यहीं से कलेक्ट करूं। तो जब मैं जाता था जंगल, उसी समय कलेक्ट करना शुरू किया। फिर ये एक एक को बांध के, ये 10 मीटर, अराउंड 30 फीट लॉन्ग एक इंस्टॉलेशन किया था, जो कि इसका शैडो आप अगर देखेंगे तो एक टायर मार्क की तरह लगता है। तो है ना, कि आप स्विट्जरलैंड में अगर कहीं भी किसी भी जंगल में भी आप एक गूगल मैप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो जंगल का आइडिया है कि रास्ता जो टायर मार्क है, रास्ते का, वो गूगल मैप में आप कैसे फॉलो करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मैंने ये आइडिया डेवलप किया था। और ये शैडो जो है वो काम का पार्ट है मेरा, एक इंस्टॉलेशन था। नेक्स्ट, ये फोटोग्राफ है कि रास्ते को जो तोड़ के, वो असफल्ट जो है ना, स्लैब्स, ये सब फेंका हुआ मैं कलेक्ट किया, फिर उस पे कर्विंग किया। सतीश नेक्स्ट जाएंगे? हाँ। तो ये सब मैं फिर कर्विंग करके उन रैंडम चीजों को, जो लोग हम लोग यहाँ सोचते हैं कि कूड़ा कचड़ा फेंक देते लोग, है ना, बट स्विट्जरलैंड या फिर यूरोपियन बहुत सारे कंट्री में रिसाइकलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है उन लोगों का। कोई भी चीज बाद नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है। तो मैं एक वहाँ का म्यूजियम है अपना, स्टार्ट म्यूजियम बोल के, आराउ सिटी में, उधर जाके मैंने विजिट किया था कि ये जो काम करने का जो तरीका है ना, सिटी डेवलप कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे उसका ब्लूप्रिंट तक डिस्प्ले किया हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये रैंडम चीज जो है ना, फेंक देने वाली चीजें हैं, इसको भी आप म्यूजियम पीस के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेरा जो एग्जीबिशन था एक म्यूजियम में ही था, तो मैंने वो दिमाग में रख के फिर इसका एक बहुत सारा कलेक्शन करके काम किया था मैंने।
और इसका डिस्प्ले भी बहुत सारे, हाँ, इस तरह मैंने किया था। ये एक्चुअली ये जो स्लैब्स है ना, जब रास्ता रिपेयर करते हैं इन लोग, तो कोबल स्टोन वापस बैठाने से पहले मिट्टी को सेट करने के लिए ढलाई करते हैं, है ना? ढलाई करके फिर वो मिट्टी सेट हो जाता है, फिर कोबल स्टोन उठाएँगे, उस पे कोबल स्टोन जब बैठाएँगे, तो ये लेयर उन लोग बाद कर देते हैं निकाल के। तो उस समय मैंने कलेक्ट किया था ये। नेक्स्ट, हाँ, ये जो ब्लूप्रिंट का जो एक मैंने डिस्प्ले जो देखा था म्यूज़ियम में, तो उस समय मैं काफ़ी ऐसे ड्राइंग किया है, छोटे-छोटे ब्लू पेपर उसी इफ़ेक्ट में, अगर आप पेपर को फ़ोल्ड करते हैं तो कैसा इफ़ेक्ट होता है ना? पुराना लुक देने के लिए। फिर उसपे डॉक्यूमेंटेशन कि मैं किस जगह को विज़िट कर रहा हूँ या फिर किन लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये सब लिखा था मैंने। ये एक सीरीज़ था, बहुत सारे ड्राइंग का। मैंने इधर 3 ड्राइंग रखा है, 3-4 हैं इधर। नेक्स्ट, हाँ, ये भी काफ़ी मतलब मैं उधर पूरा फ्री था, कि पूरे खुल के मुझे एन्जॉय करना था अपने, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अ, मैं क्योंकि फ्री था उधर, मुझे वो फाइनेंशियल के बारे में नहीं सोचना। इधर अपने स्टूडियो में क्या है ना कि आप एक दिमाग में रहती है कि आपका स्टूडियो का रेंट है, बहुत सारी चीज़ें, आपका डेली लाइफ का जो खर्चा है, वो सब दिमाग में चलता है। तो आप रिस्क लेने से थोड़ा घबराते हैं, है ना? काम के समय में। बट मैं वहाँ फुल फ्री अपने काम को एन्जॉय कर रहा था। ये सब पेपर को मैं डायरेक्ट एक्चुअल स्पेस में जाके उन लोग से बातें भी कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और रास्ते के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड में जाएँगे सतीश? हाँ, ऐसे रास्ते में जाके मैं रबिंग कर रहा हूँ, है ना? पेपर के ऊपर, फिर वो इफ़ेक्ट आ रहा है, अपना ग्राफ़ाइट का जो टेक्सचर है, फिर उसके ऊपर मैं ये जो नियो कलर है ना, ये ड्राइंग किया हुआ है, ये रास्ता तोड़ने से पहले इन लोग ड्राइंग करते हैं, है ना? तो ये कलर भी मैं वहीं से कलेक्ट किया, नियो कलर। उन्हीं लोगों से मैं लेके फिर अपने आगे का स्लाइड में जाएँगे? नहीं, नहीं, नेक्स्ट पिछले वाले स्लाइड में, या ये जो छोटे-छोटे ड्राइंग्स है ना, जो अ, रबिंग पेपर के ऊपर मैंने किया था, तो ये कलर मैंने उधर से ही कलेक्ट करके फिर वो सिंबल या फिर जो रास्ते में बैरियर वगैरह यूज़ करते हैं, है ना? वही सब ऑब्जेक्ट को मैंने इधर डाला था। ये भी काफ़ी मेरे लिए एक्साइटिंग था कि मैं एक दिन मॉडलिंग के लिए छोटा-छोटा कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, मॉडलिंग के लिए सिंथेटिक क्ले खरीद के लाया था मैं। तो उसमें से एक ऐसा मटेरियल था कि वो नाइट में ग्लो करता है। तो मुझे अजीब-सा लगा कि ये उधर वो अपना बच्चे का टॉय के लिए यूज़ करते हैं वो मटेरियल। तो मैंने वो लाके फिर बहुत सारे, फिर वो सिंथेटिक क्ले है, जो सेरामिक क्ले है, उसपे पंच करके मैंने ओवन में रोस्ट किया उसको, देखा पका के कैसा लगता है। चूँकि मैं इधर वुड पे रोटी बनाया था, अभी मैं उधर जाके उधर के सिंथेटिक क्ले में फिर दूसरे मटेरियल में वो एक रोटी बनाने का इच्छा था। और ये काम का मैंने टाइटल रखा था विद्रोह, जो रिबेलियन जिसको बोलते हैं ना। तो ये रोटी का जो होता है ना कि दौड़ जो है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना? तो एक्चुअल जो मेरा वहाँ का जो मैं रिसर्च कर रहा था, जिन लोगों से मिल रहा था, वो भी समहाउ वो अपने ड्रीम्स या फिर अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए इतने दूर से जाते हैं, है ना? तो और हमारे हिंदी में एक कहावत है कि दूर का जो ढोल है ना, बहुत सुहाना लगता है, कि आप अगर आपके सामने आके कोई ढोल बजाए तो मज़ा नहीं आएगा। आप बहुत दूर से सुनते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। तो ये जो फ्लोरेसेंट कलर जो मैंने यूज़ किया था, जो नाइट ग्लो करता है डार्क स्पेस में, वो रियल नहीं है, है ना? रोटी है पर रियल रोटी नहीं है। वो जस्ट एक दिखावा है रोटी जैसा।
उसका एक्चुअल एक अलग और भी एक रूप है, जो मैं दोनों लाइट और डार्क के बीच में कंट्रास्ट के ज़रिए समझाया था। व्यूअर उसके अंदर जाता, फिर लाइट ऑफ करता तो वो ग्लो करता था। ये मेरा प्रीवियस वर्क है। मैं कॉलेज में तब एक्चुअली मैं अपने गाँव जब भी जाता हूँ ना, तो हर साल साल में 1 बार ज़रूर विज़िट करता हूँ मैं अपने गाँव को। तो ये हर साल जब भी मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ बहुत सारे डेवलप के नाम पे चेंज हो रहे हैं, या फिर अ, अपना बहुत सारे अभी इल्लीगल स्टोन माइनिंग हो रही है, या फिर रास्ते के नाम पे पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं। तो एक दिन क्या है, मेरे भैया का जो मेरे एल्डर ब्रदर्स उनका जो लड़का है, एक दिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो बच्चा है, मैंने बोला कि उधर मत जाओ, वो पेड़ पे भूत रहता है। और हमारे गाँव में ऐसे ना नैरेटिव स्टोरीज़ बहुत सारे हैं कि कोई अगर पुराना पेड़ है तो उसको एक कोई पूजा करते हैं, है ना? या फिर कोई स्टोरीज़ है उसके साथ कि उसपे भूत है या फिर देवता है कोई। ऐसे बहुत सारे मिथ स्टोरीज़ हैं, जो गाँव-गाँव में ये नैरेटिव स्टोरीज़ धीरे-धीरे खत्म हो रही है ना? तो ये काम का जो मेरा टाइटल था, लिविंग स्किन एंड द डेथ ऑफ नैरेटिव। तो ये नैरेटिव का जो धीरे-धीरे समाप्त हो, मैं वो अपने भैया के लड़के से जब बात कर रहा हूँ कि उधर मत जाना, भूत रहता है उस पेड़ पे। तो ना, भूत-वूत नहीं है, पेड़ काट दिया, तो भूत नहीं है उधर, मैं जा सकता हूँ। तो ये जो एक हम लोगों को जो बचपन में जो डराया जाता था कि उधर मत जाना, भूत है, एक दिमाग में रहता था। तो वो सब चीज़ें अभी खत्म हो रही है ना, ये स्टोरीज़। तो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये। मैं इसका एक बहुत बड़ा सीरीज़ किया था मैंने। अ, 6-7 काम था मेरा, उसमें से ये भी था। इसमें कुछ मैंने वर्ड भी यूज़ किया, बड़े-बड़े पेड़ पे भूतों का डेरा। तो ऐसे होता ना कि अगर बहुत बड़ा पेड़ है, या तो उसपे कोई देवता रहता है या फिर कोई भूत रहता है। ये तो प्रॉपर गाँव में होता है ऐसा, है ना? तो ये स्टोरीज़ धीरे-धीरे खत्म हो रही है। मेरे मेरे लिए स्ट्राइकिंग था, मैंने इस सीरीज़ में इसके ऊपर काम किया। और ये सब जो पेड़ है ना, ये सारे कोलकाता से मैंने जो वुड मिल है अपना, मानिक तल्ला बोल के एक जगह है, ये सिटी का जो सारे जो क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का जो नदी जैसा बना है, जो खाल बोलते हैं हम लोग, तो उस खाल के किनारे बहुत सारे मील का पूरा बेल्ट है, एकदम बड़े 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 मिल्स है उधर। और जो पेड़ सब आते हैं अदर स्टेट से, तो उधर से मैंने सिंगल सिंगल वुड पे जो ये जो आप देख रहे हैं ट्री बार्क, ये पूरे एक पेड़ का है, एक एक पीस एक एक पेड़ का है। मैंने उधर से निकाल के फिर ये काम डेवलप किया था। ये जैसे कि बूट प्रिंट है ना, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बूट यूज होती है, उसका प्रिंट है ये। और आगे के स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट पिछले वाले स्लाइड में, इसके पीछे वाले और पीछे, ये जो टायर मार्क है ना, ये इस पे भी आप देखेंगे मेरे जो काम करने का जो एक मैं जो यूज करता हूँ अपने काम पे, कंट्रास्ट है, एक ही सरफेस है, बट उसको इनग्रेव किया तो अंदर का सरफेस एक ब्राउनिश कलर, ये बनसाइना जो ब्राउन कलर है, तो इस पे भी वो कंट्रास्ट है, और इस पे कोई कलर यूज नहीं है। ये टायर मार्क मैंने इनग्रेव करके ग्राफिक टूल से ये किया था, इनग्रेवर टूल से। This color change, no? This color will change, right? या वो change हो जाएगा ना later? नहीं, नहीं, ये That एक्चुअली मैं प्रिज़र्व किया काफ़ी दिनों तक, है ना? ये ऐसा है कि ट्री बार्क पे आप काम करना बहुत ईज़ी नहीं होता। मैं अभी भी इसका प्रिज़र्वेशन चल रहा है मेरे स्टूडियो में। अभी भी बहुत सारे जो प्रिपेयरिंग चल रहा है। ये 2 साल, 2.5 साल कभी लग जाते हैं। आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, फिर वो सीज़निंग होगा, तो फिर वो श्रिंक ना हो या फिर फटे ना, इसलिए बहुत सारे ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। या फिर कोई कीट या फिर वो होती है ना, इंसेक्ट्स ना लग जाए, हाँ के लिए मेडिसिन वगैरह यूज़ करना होता है। तो मैं पहले प्रिपेयर किया, 2 साल तक इसका वेट किया, इसका क्या फाइनल रिज़ल्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने काम डेवलप किया था।
Then I'm just curious. That's it. ये भी क्षमा वो उसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है जो गांव में है ना, टावर वगैरह ये सब लग रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल चीजें हो रही है। स्टोन माइनिंग का अभी फिलहाल अ, अभी मैं रिसेंटली विजिट किया अपना गांव। 31 दिसंबर को गया था मैं, 3 जनवरी को वापस आया। तो तब देखा कि ये सब अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। जो अपना इलीगल वुड सप्लाई होता था, ये कर्विंग किया हुआ है। एक सिंगल वुड पे कर्विंग करके फिर उसका स्किन बनाया मैंने, फिर उसका जो बाइंडिंग का एक इफेक्ट है वो सिंगल वुड पे कर्विंग करके किया गया है। और उसका जो एक कंट्रास्ट है इनर साइड का, जो वुड का एक्चुअल जो कोर हिस्सा है ना, कोर पार्ट, और अपर जो ट्री बार्क का, वो सारे कर्विंग इफेक्ट्स है इसमें। इसमें कोई स्किन नहीं है, Mhm. इसको क्रिएट किया मैंने। ये मैंने 2019 में पिरामिल रेसिडेंसी, हाँ sorry, पिरामिल रेसिडेंसी अटेंड किया था उधर। ये काम मैंने डेवलप किया Bombay. था। हाँ, बॉम्बे में। तो ये भी वैसे ही ऐसे घूमते घूमते मैंने ठाणे में जो रेलवे स्टेशन है उधर गया, तो काफी लोग मिले जो कि यूपी से है, बिहार से है, छत्तीसगढ़ से है। तो उनका जो कुछ छोटे छोटे दुकान है ना, उधर ही लिविंग स्पेस है उन लोगों का। हाँ, कपड़े हैंग करके रखे, तो आपको लगेगा कि दुकान भी चला रहे और घर भी इसी का यही है। तो ये दोनों जो स्पेस का जो ये था अटैचमेंट थ्रू ऑब्जेक्ट, मैंने उसको ये किया था। अ, ये भी जस्ट ऐसे ही कि अपना क्या मिलता है मुझे इन लोगों से, जब मैं इन लोगों से बातें करता हूँ तो सिर्फ बात नहीं करता हूँ कि बहुत सारे चीज होते हैं आसपास में, ऑब्जर्व करता हूँ मैं। और ये सब जो है एक्चुअल चीज़ों को मैं कलेक्ट भी करता हूँ कभी-कभी। ये जो इनका अंडरवियर है, जो इसके इधर एक छोटा-सा पैसा रखने का जो थैला होता है ना, वो एकदम छिपा के रखते हैं ऐसे, जो डेली बेसिस जो वर्कर्स होते हैं कोलकाता में। डेली पेमेंट वाले जो वर्कर्स होते हैं, उनका एक पर्सनल पैकेट होता है जो अंडरवियर के अंदर रखते हैं एकदम छिपा के। तो काफ़ी इमोशंस है इसमें। अ, मैं ये सब कलेक्ट भी किया, उनको नया खरीद के दिया, पुराने चीज़ों को उन लोगों से लिया मैं। अ, ये काम भी, वो जो आगे का काम मैंने आप स्लाइड में देखे जो डलहौजी का जो स्ट्रीट है ना? ये Mhm. भी बड़ा बाज़ार का एक कैनिंग स्ट्रीट बोल के जगह है। वहाँ पे भी आपको क्षमा वैसे ही ये मिलेंगे, बट उधर क्या है ना कि ऑफ़िशियल स्पेस नहीं है वो। वो सिर्फ़ दुकानें हैं बहुत सारे, जो छोटे-छोटे गारमेंट्स या फिर ऐसे दुकान मिलेंगे जो, तो उधर पे खाने-पीने की चीज़ें जो दुकान है, ऐसे हमेशा मुझे अट्रैक्ट करते हैं। अ, मैं ये करता हूँ, फिर फ़ोटोग्राफ करके फिर उसको काम पे डेवलप करता हूँ। ये मेरा रिसेंट वर्क है। Mm. ये लॉकडाउन के जब शुरू हुई थी, अ, मेरे काफ़ी जो मुंबई या फिर दिल्ली में रहते हैं, जो मेरे गाँव से हैं, है ना? जब एक तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ सिचुएशन कि सारे सारे को घर में बंद कर दिए, है ना? सभी घर बंद हो गए। फिर अचानक से ऐसा एक सिस्टम हुआ कि आप ऑनलाइन ही टिकट काट सकते हैं। जब ट्रेन चालू हुई, कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई, तो आप पर्टिकुलर किसी स्टेट में अगर आपको मूव करना है तो आप ऑनलाइन टिकट ही काट सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ये नहीं था। तो बहुत सारे लोग जो मेरे जानकार हैं, मेरे गाँव के हैं, उन लोग मुझे कॉन्टैक्ट किए, क्योंकि उन लोगों के पास मैं एक आइडियल आइडियल फिगर की तरह हूँ कि बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, बट ऐसा ये इसलिए मतलब वो हमारे छोटे टाइम के बचपन के दोस्त हैं। उन लोग बोलते हैं कि मेरा हेल्प करो, अभी टिकट काटनी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट किए,
फिर भी मतलब अब सभी का तो ऐसा नहीं था, कुछ लोग मूव किए, पैदल जाना पसंद किए बहुत सारे लोग। अचानक से वो होता है ना कि तो ये ऑब्जेक्ट है ना, फ्लो, एक फ्लो क्रिएट करने की कोशिश किया था मैंने। इसमें बहुत सारे थैला, बैग वगैरह हैंग करके लोग ले जा रहे हैं। तो सिर्फ मैं थ्रू ऑब्जेक्ट वो चीज़ ये किया था मैंने। और ये जो वेव है, एक टेम्पररी शेड का जो वेव होता है ना, अगर उसका जो रूफ होता है वो परमानेंट नहीं होता है। अगर टेम्पररी शेड जो टीन का जो घर होता है, तो वो टीन का जो दीवार है उसको मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे अचानक से ना घर के ना घाट के होते ना, कि उस तरह के हो गए लोग। और ये भी उसी आइडिया पे मेरा ये था कि ये काम का टाइटल भी मेरा जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हिंदी की कहावत है ये, कि जिसके पास पावर है ना उसी का सब कुछ है, ऐसा अ, हम लोग सोचते हैं। ये कहावत के थ्रू यही अ, बोला गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास पावर है वो वही सब कुछ कर सकता है। तो ये कुछ लोग आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि जगह-जगह हाईवे बंद कर दिया गया था, है ना? बैरियर लगा दी गई थी। और लोग इतने दूर से अगर अदर स्टेट से, अगर दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट तक जानी होती है, तो आपको रास्ता मालूम नहीं, आप कैसे जा सकते? तो उन लोग हाईवे का सहारा लिया और हाईवे ही बंद कर दिया गया था। तो ये बहुत मतलब पैथेटिक था, क्योंकि अगर मैं उन लोगों के जगह होता, कि उन लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट था मेरा, हर दिन बातें होती थी। जो लोग फँसे हुए थे या फिर मेरे गाँव के जो लोग हैं। तो इसी आइडिया पे था ये मैंने एनिमल का जो पैर है, वो आदमी के पैर के साथ मैंने हाइब्रिड फॉर्म किया, कि ये एनिमल की तरह लोग बिहेव किए ना, जिसके मतलब पावर, मतलब ये लाठी जो है पुलिस का लाठी है, मैंने यूज़ किया था। और रास्ते का बैरियर वगैरह, तो समहाउ वो एक एनिमल जैसा ही बिहेव किया गया। हाँ, तो मैंने वो इसको क्रिएट किया थोड़ा। अ, ये मेरा अभी रिसेंट कुछ दिन पहले मैंने फिनिश किया ये काम। Mhm. This ये was in our invitation. या ये काम मैं जब ऐसे बहुत सारे दिन में मतलब जब लॉकडाउन में मैं इन लोगों से बात कर रहा था, अपने गांव से कांटेक्ट था डायरेक्ट उन लोगों का, कैसे क्या कर रहे हैं अभी, अचानक से जॉब, कुछ-कुछ का घर ऐसा है ना कि हर दिन जो पेमेंट मिलता है, उसी से घर चलता है उनका। तो ऐसे लोग क्या करेंगे इस टाइम पे? तो ये जानने के लिए मैं उन लोग से कांटेक्ट कर रहा हूँ। अब गाँव में क्या है, क्योंकि उस टाइम सीज़न नहीं हमारे गाँव में, जो ईंट बनाने का टाइम होता है ना, ये टाइम अभी परफेक्ट है। आप दिसंबर से स्टार्ट करेंगे तो वो मार्च-अप्रैल तक चलता है, ईंट बनाने का टाइम। लेकिन ये तब चालू हो गया क्योंकि आपको गाँव में बहुत सारे मज़दूर मिल रहे हैं, जो 500 पर डे के हिसाब से मिल रहा था ना, आपको 200 में मिल रहे हैं। तो लोग जो जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, हाँ, तो ये जो उधारी दे के रखे हैं। अभी आपके पास बहुत सारा पैसा है, अब जो जॉबलेस है वो क्या करेंगे? उधार लेना पड़ेगा। तो ये उधारी का जो सिस्टम था कि मेरे प ठीक है मेरा काम करो, ये काम है मेरा करो। तो जब तक उधारी से उसका शोध नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाती, तब तक काम करेंगे। तो ऑफ सीजन में ये ईंट का सिस्टम चालू हुआ था उधर। मैंने उन लोगों से बातें की थी कि कैसे वो 500 से मौका का फ़ायदा लेके 200 में काम करवा रहे लोग, है ना? इसका ने आगे वाला स्लाइड में जाइए सतीश, पिछले वाले। हाँ, ये जो मैंने इसमें चेयर का एक ये बनाया है कि ये पावर है ना? और इसके इधर मैंने एक हंटर जो चाबुक बोलते हैं, मैंने वो रखा। और बाकी ऐसे ऑब्जेक्ट कि सरेंडर हो जाना, कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, आप ही जो कर सकते हो। तो ऐसे फ़ायदा बहुत हुआ गाँव में, बहुत सारे लोग ऐसे मौके का फ़ायदा लिए। और पता नहीं आगे क्या होगा, अभी भी बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं गाँव में।
Thank you, man. थैंक यू। Thank you. Very nice presentation. अर्जुन एक सवाल पूछ रहा था वो मिथु, वो आपका स्टूडियो में है ना, आपका पास कुछ अगर वर्क है क्या कुछ आपका, तो उड़ा के दिखा सकते क्या कुछ? अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा Mhm. हाय परवेश। Right. Thank you, Arjun, for showing your work. And it's for me, like Hindi is not that easy, but the Hindi what you speak, it's from your heart. So I just, like felt so, I don't know, moved. Like amazing works and very truthful to your work. That's what I first felt that. Like that's a first impression. थैंक यू। Like you're truthful to your work. So amazing. Like there is no such थैंक यू सो uh, मच। amazing work. So और and किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हाँ। yeah, they will ask. Yeah, they will ask the question. I don't have anything. Like I'm so happy that you showed. Arjun, I just wanted to know because you said, sorry, आप स्विट्जरलैंड में जब भी थे तो आपको कोई चिंता नहीं थी स्टूडियो कैसे चलाएंगे, मतलब रेंट कैसे देंगे वगैरह वगैरह। तो आप कोलकाता में रहते हैं ना, काम हाँ हाँ। कहाँ और कुछ काम करते हैं क्या, कि मतलब आर्ट? नहीं, अभी सिचुएशन काफी ये हुआ धीरे धीरे, क्योंकि एक टाइम था जब मैं काफी स्ट्रगल कर रहा था। अभी कम से कम स्ट्रगल वाली स्थिति नहीं है कि अभी फुल फ्री में सोच सकता हूँ काम के बारे में, काम कर सकता हूँ मैं। तो वो डर था एक समय, बट अभी नहीं है फिलहाल। Yeah. So have you seen our teacher Alex Matthews' work, or like a Western artist like Stephen Balkenhol? Sort of. Have you seen Alex Matthews' relief work? Have you seen some of them? No, he's also good in relief, no? Like he's very Alex Matthew. He's our teacher in SM School, University of Hyderabad. No, you haven't seen? अब पता नहीं, मैंने देखा भी होगा तो शायद मुझे। He's good. You should see his work. Alex Matthew. Okay. Yeah, he did many works. Also, this artist, it's a German artist called Stephen Balkenhol. Balkenhol. Yeah, he also does a lot of relief, like wooden relief, it reminds me of your work actually. Yeah. Yeah. Otherwise, like, how is your the recent works are going? Like, is there any show coming or something happening now? Like, नहीं, hello. अभी फिलहाल Yeah. हाँ Yeah. Go on. अभी फिलहाल ऐसा नहीं है कि कोई अपकमिंग एग्जीबिशन या फिर ऐसा। बट मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ, मैं अपने काम का, जैसे मेरे रेगुलर प्रैक्टिस है, मैं कंटिन्यूसली वो कर रहा हूँ। थोड़ा लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि मटेरियल या फिर वो सब चीजें, बट अभी कंटिन्यूसली मैं फुल फोकस्ड हूँ काम पे। अब पता नहीं, वो ऑनलाइन कुछ एग्जीबिशन हुई थी, जैसे मोजार्टो बोल के एक ऑनलाइन हुई, उस पे हुई थी। दी आर्ट स्पेस ने एक ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था। Okay. तो Yeah. अभी All these things happening. Arjun Das, thank you for sharing your work. बहुत बढ़िया लगा आपका काम लकड़ी लेके। मैं भी एक स्कल्प्टर है, लकड़ी में अभी कार्विंग शुरू किया है। आपका देख के बहुत अच्छा इंस्पिरेशन हो गया। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे पास और एक सवाल था। हाँ जरूर। आपने काफी इंक ड्राइंग्स बनाए हैं। आप इंडियन इंक, मतलब कौन सा इंक यूज करते हैं? स्पेशल इंडियन इंक होता है कि वो कमर्शियल जो मिलता है इंडियन इंक? क्योंकि जब मैंने इंक कोशिश की, मुझे बताया गया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे फोटोज फेड होते हैं, वो भी हो जाता है करके मैंने छोड़ दिया। तो आपने वाटर कलर का कभी सोचा कि इंक में ही आपको पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं इंक का जो नॉर्मली मेरे पास तो अभी एक्चुअली जो इंडियन इंक जो होती है ऐसे कुछ यूज करता।
और साथ में वाटर कलर भी किया हूँ, बट वाटर कलर का जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं वाटर कलर, बट मुझसे नहीं हो पाया, मैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया वाटर कलर का। बट मैं मुझसे जो होता है जैसे कि इंक का, कभी मैं शुरू के दिन तो मैं कभी कभी वो जेल पेन होती है ना, उससे भी इंक निकाल के मैंने यूज किया। अभी ट्यूब वगैरह में यूज करता हूँ, स्पेशल जो इंडियन इंक के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने कुछ कलर स्विट्जरलैंड से भी मैंने लाया था, उधर से इंक सारे हैं। Okay, I think most people ask their questions during the presentation itself. Anyone else? Any other questions or comments? Okay, yeah. So thank you, everyone. Thank you, Arjun. Wonderful, great to see your journey, and most importantly, like how you came up, and you know, and I want to introduce परवेज। Yeah. परवेज स्विट्जरलैंड में मैं इनसे मिला था, ये अपने दिल्ली से हैं। और काफी वो होती ना कि बहुत सारे इनसे हेल्प मिला उधर, मेरा एक प्रेजेंटेशन भी करवाए थे ये। और परवेज सब ठीक ठाक उधर? ये परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है। Okay. Thank you, Parvez, for joining. Thanks. It's a pleasure always listening to him. Yeah. Maybe it was a very nice experience. And thank you, Arjun, but you don't need to introduce. Thanks. No, like, okay. great. Yeah. So thank you, everyone. We will meet you all next week, next Saturday, same time. Okay. Okay. Thank you, Arjun. Thank you, Arjun. all of Thank you. you. All of you. Thank you. Bye. Thank you all. Bye. Bye.